اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، احسان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ ہمارے آج 12ویں پاری کا آغاز ہوا ہے۔ آغاز ہوتا ہے سورہ ہود سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یعنی اس کتاب کا آغاز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پختہ ہیں، مکمل ترکیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی آیات کو نازل کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کتاب کی آیات آگے پیچھے کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور نہ ہی ایسا ہے کہ اس کی معنی میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی خلل ہے، بلکہ یہ محکم کتاب ہے، اس کی آیات محکم ہیں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پختہ علم ڈالا اور جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم فصلت، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کی کسی بھی آیت کے اندر کوئی مبہم، کوئی ابہام یا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو صاف صاف بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہ کھول کھول کر بیان کی گئی کہ آیات ہیں من لدن حکیم خبیر، اس بابرکت ذات کی طرف سے جو حکمت والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے، ہر بات کے بارے میں وہ باخبر ہے، یعنی اپنے اقوال میں حکیم ہے، اس لیے اس کی طرف سے نازل کردہ باتیں حکمت سے خالی نہیں ہیں۔ وہ خبیر بھی ہے، یعنی تمام معاملات اور ان کے انجام سے مکمل طور پر باخبر ہے، اس لیے اس کی باتوں پر عمل کرنے سے ہی انسان برے انجام سے بچ سکتا ہے۔ الا تعبدوا الا اللہ، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا انٹروڈکشن دیا۔ ہم دیکھتے ہیں مکی سورات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا انٹروڈکشن لازمی دیا ہے کہ میری کتاب، یہ کتاب کیا ہے جس کو نبی پاک پڑھ رہی ہیں، تم کہتے ہو یہ جادو ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتی ہیں یہ کتاب کیا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں الا، یہ کہ نہ تم عبادت کرو سوائے اللہ تعالیٰ کی، باقی جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے، تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کے عذاب یعنی یوم قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرانے والا، و بشیر اور خوشخبری دینے والا بن کر آیا ہوں کہ میں تمہیں جنت کی خوشخبریاں دے دوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی خوشخبریاں دے دوں، اور میں تمہیں ڈرا دوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، ثُمَّ تُوبُوا، کہ تم اپنے رب سے کی طرف مغفرت طلب کرو، مانگو تب اللہ تعالیٰ سے، الیہ یمتعکم، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسی کی طرف معاف کراؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا۔ الیہ یمتعکم، فائدہ دے گا، متاعن حسنن، اچھا فائدہ دے گا، الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور اچھا فائدہ سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ یہاں اس سامان دنیا کو، جس کو قرآن نے عام طور پر متاع غرور یعنی کہ دھوکے کا سامان کہا ہے، یعنی کہ دنیا کی زندگی کا سامان دھوکے کا کہا ہے، یہاں اسے متاع حسن کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آخرت سے غافل ہو کر متاع دنیا سے استفادہ حاصل کر لے گا، دنیا کی زندگی سے فائدہ حاصل کر لے گا، اس کے لیے یہ متاع غرور ہے، یعنی کہ دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ اس کے بعد اسے برے انجام سے دوچار ہونا ہے، اور جو آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس کے لیے یہ چند روزہ سامان زندگی متاع حسن ہے، کیونکہ اسی دنیا کی زندگی سے ہی اس نے اپنی آخرت کو کمایا، لیکن یہ ان کے لیے متاع حسن ہے جس نے اپنی دنیا کی زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے گزاری، اور جس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ دنیا کی زندگی نہ گزاری، اس کے لیے یہ متاع غرور ہے کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے متاع حسن بنا دی۔
इला अजल मुसम्मा, कि वो एक मुकर्ररा वक्त तक इस दुनिया की ज़िंदगी में रहेंगे। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़िंदगी, और वो हर ज़्यादा अमल करने वाले को ज़्यादा सवाब देगा। अल्लाह ताला हर ज़्यादा अमल करने वाले को ज़्यादा सवाब देगा, अपने फजल से ज़्यादा देगा। व इन तवल्लौ फ़इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर, और अगर तुम लोग एराज़ करते रहो तो मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब के बारे में अंदेशा है, खौफ है। फ़इन्नी, बस मैं खौफ खाता हूँ तुम्हारे बारे में। अगर तुम मुंह मोड़ लो, व इन तवल्लो, अगर तुम मुंह मोड़ लो, फ़इन्नी अखाफ़ु, बस मैं डरता हूँ, खौफ खाता हूँ उस बड़े दिन के अजाब के बारे में जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला हम सब पर नाजिल करेगा, हम सबको उसके अंदर डाल देगा। नाजिल नहीं होगा बल्कि धकेल कर डाला जाएगा। इलल्लाही, तरफ अल्लाह ताला के ही, मर्जिउकुम, लौटना है तुम सबको। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। जब उसी की तरफ लौटना है तो फिर उससे भाग कर कहाँ जाएंगे। अला, खबरदार, याद रखो, इन्नहुम यथनून सुदूरहुम। अब यहाँ पर इसके शान नुज़ूल के बारे में दो बातें की जाती हैं। लियस्तखफू मिन्हु अला हीन यस्तगशून सियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। यहाँ पर इसके बारे में तफसीर में शान नज़ूल के बारे में इख्तलाफ है, लेकिन जो रवायात में जो ज़्यादा मिलता है वो ये है कि ये उन मुसलमानों के बारे में नाजिल हुई ये आयत। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर कि याद रखो वो लोग अपने सीनों को दोहरा किए हुए हैं। इन्नहुम यस्नूना सुदूरहुम, दोहरा किए हुए हैं। लियस्तख्फू मिन्हु अला हीन यस्तगशून थियाबहुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं ताकि अपनी बातें अल्लाह ताला से छुपा सकें। यस्तख्फू मिन्हु, ताकि वो छुपा सके इन बातों को अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याद रखो, अला, खबरदार, हीन यस्तगशूना सियाबहुम, याद रखो कि वो लोग जिस वक्त अपने कपड़े लपेटते हैं, यस तगशूना, ढांपते हैं, सियाबहुम, अपने कपड़ों को, यअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, तो वो उस वक्त भी सब जानता है जो कुछ छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला दिलों के भेद को बखूबी जानता है। अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या है कि ये उन मुसलमानों के बारे में नाजिल हुई जो गलबा हया की वजह से, कि उनके ऊपर हया का एक बड़ा सख्त गलबा था। वो क़ज़ाए हाजत, यानी कि जब वॉशरूम जाते और बीवी से जब भी हम बिस्तरी करते तो उस वक्त भी बरहना होना, यानी कि अपने कपड़ों को उतारना, अपना लिबास उतारने को नापसंद करते थे। उनको पसंद नहीं करते थे वो, कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। इसलिए ऐसे मौकों पर वो शर्मगाह को छुपाने के लिए अपने सीनों को दोहरा कर लेते हैं। यानी कि सीनों को दोहरा करना, कि इंसान झुक कर जैसे बैठ जाता है ना, कि अपनी शर्मगाहों को छुपा लेना, झुक कर बिल्कुल अपनी टांगों के अंदर अपनी शर्मगाहों को डाल लेना और अपने अपने आप को टांगों से लपेट लेना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि रात को अंधेरे में जब वो बिस्तरों में अपने आप को कपड़ों में ढांप लेते हैं तो उस वक्त भी वो उनको देखता है और उनकी छुपी और एलानिया बातों को जानता है। मतलब ये कि शर्म और हया का जज्बा अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें इतना गुलू भी सही नहीं है। इसलिए जिस ज़ात की खातिर वो ऐसा करते हैं उससे तो फिर वो नहीं छुप सकते, तो फिर इसमें इतना तकल्लुफ करने का क्या फ़ायदा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनके बारे में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला तो उनकी हर हर बात को जानता है। 12वें पारी का आगाज होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ज़मीन पर चलने फिरने वाले जितने जानदार भी हैं, सबकी रोजियां अल्लाह ताला पर हैं। वही उनके रहने सहने की जगह को जानता है और उनकी मुस्तकर रहा। जी, ये जो है ये मुस्तकर रहा और मुस्तौदअहा, इसमें मफूल है बाब इस्तिफाल से। मुस्तकर रहा व मुस्तौदअहा, और वही उनके रहने सहने की जगह को जानता है और उनके सौंपे जाने की जगह को भी जानता है।
सब कुछ वाज़ेह किताब में मौजूद है। कुल्लुन फी किताब मुबीन, यानी वो कफील और जिम्मेदार है ज़मीन पर चलने वाली हर मखलूक, इंसान हो, जिन हो, चरिंद हो, परिंद हो, छोटी हो, बड़ी हो, हर एक को अल्लाह ताला खुराक मुहैया करता है। हर एक को खुराक मुहैया करता है, रोजियां देता है, और वही उनके रहने की जगह को भी जानता है और उनके सौंपे जाने की जगह को भी जानता है। मुस्तक़र्रुन के बारे में एक कुछ कहते हैं इस यहाँ पर कि मुस्तक़र्रुन रहम मादर, यानी कि माँ का जो रहम है उसके अंदर जो बच्चा ठहरता है उसको कहा जाता है। वो जो बाप की जिस्म से जो स्पर्म निकलता है उसको मुस्तौदा कहते हैं, मुस्तौदा। ठीक है। और और कुछ कहते हैं इसमें, इमाम शौकानी कहते हैं, तफसीर इब्न कसीर में इसकी ये तफसीर बयान की गई है कि माँ के रहम को मुस्तक़र्रुन और बाप के सल्ब को, जिससे बच्चे का नुत्फा निकलता है, उसको मुस्तौदा कहते हैं, मुस्तौदा कहते हैं। ठीक है। ये तफसीर इब्न कसीर में है। जबकि इमाम शौकानी कहते हैं कि मुस्तक़र्रुन से मुराद रहम मादर और मुस्तौदाउन से मुराद वो हिस्सा ज़मीन है जिसमें इंसान दफन होगा। और इमाम हाकिम की एक रवायत की बुनियाद पर इसी को तरजीह दी गई है। बहरहाल जो भी मतलब लिया जाए, आयत का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला को हर एक की मुस्तक़र्र और मुस्तौदा का इल्म है। वो इसलिए वो हर एक को रोजी पहुंचाने पर कादिर है। चाहे वो बच्चा माँ के पेट में हो, वहां पर भी अल्लाह ताला उसको रोजी पहुंचाता है, और चाहे वो जहां जहां पर भी होगा वो वहां पर अल्लाह ताला उसको रोजी पहुंचाता है। अल्लाह ताला ने न सिर्फ जानदारों और जमीन के अंदर चलने फिरने तमाम जानदारों की बात कही, बल्कि अल्लाह ताला ने उस इंसान के बारे में बात कह दी जो अभी दुनिया में अभी आया ही नहीं। अल्लाह ने उसके रिस्क के बारे में भी बात कर दी कि अल्लाह ताला उन सबको रिस्क देता है। और ये अल्लाह ताला ने फिर ये भी फरमा दिया कि ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में लिख रखा है। ये सब कुछ लोहे महफूज में महफूज है। वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन। अल्लाह ताला अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमानों को और ज़मीन को 6 दिनों में बनाया। वकान अर्शुहु अलल माई, और उस वक्त अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। अल्लाह ताला ने जब जमीन और आसमान को बनाया उस वक्त अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल कबल मखलूक़ात की तकदीर लिखी। 50,000 साल पहले इस वक्त उसका अर्श पानी पर था। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ताकि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम सबको आजमाए कि तुम में अच्छे अमल कौन करता है। अब ये भी अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की आजमाइश में डाला, और इसलिए डाला कि हम में से अच्छे अमल कौन करता है। इन सारी बातों को बर्दाश्त करने के बाद फिर रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं कि वला इन कुल्ता इन्नकुम मबऊसून मिन बादिल मौत। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अगर आप उनसे कहें कि तुम लोग मरने के बाद उठा खड़े किए जाओगे, तो काफिर लोग पलट कर जवाब देंगे कि ये तो सिर्फ और सिर्फ जादू ही है, जादू के अलावा ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि काफिरों को सबसे बड़ी जो अदावत थी वो कहते थे कि हम दोबारा जिंदा नहीं होंगे। फिर अल्लाह ताला ने आयत में इरशाद फरमाते हैं, वला इन अखरना अन्हुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मादूदा, और अगर हम उनसे अजाब को गिनी चुनी मुद्दत तक के लिए पीछे डाल दें, उनसे पीछे कर दें, उसको एक मुद्दत तक के लिए उनसे दूर कर दें, तो ये जरूर पुकार उठेंगे कि अजाब को कौन सी चीज रोके हुए है। अजाब मांगने में भी तो जल्दी यही करते हैं। लयक़ूलुन्ना, वो अनकरीब कहेंगे, मा यहबिसुहु, कौन सी चीज है ऐसी जो इस अजाब को रोके हुए है। अला, खबरदार सुन लो, यौम यअतीहिम लैसा मसरूफन अन्हुम, कि जिस दिन वो अजाब आ जाएगा, जब जब भी उनसे वो अजाब आ जाएगा, लैसा मसरूफन, कोई भी उस अजाब को रोक नहीं सकेगा, मसरूफन, नहीं रोक सकेगा, उनसे फेर नहीं सकेगा। अनहुम वहाक बिहिम मा कानु बिही यस्तहजिऊन, और वो उनसे हरगिज वो अजाब ना टलेगा। तो जिस चीज की ये हंसी उड़ा रहे हैं वो अजाब उन्हें मुकम्मल तौर पर घेर लेगा। इंसान नाउम्मीदी में मुब्तला हो जाएगा। नाउम्मीदी इंसान को अपने मुस्तकबिल से होती है, माजी से नाउम्मीदी नहीं होती। इंसान अपने फ्यूचर से नाउम्मीद हो जाता है कि अब उसके पास राह फरार कुछ नहीं है। और इंसान जब नाशुक्री करता है तो अपनी माजी की हरकतों पर
اور اپنے ماضی کی دی ہوئی چیزوں پر، آسائشوں پر، اور اپنے حال پر، یعنی کہ جو ابھی اس کے پاس موجود ہے اس پر ناشکریاں کرتا ہے انسان۔